How are you all? Myself, Mr. Shivam Dhiman, and I am your social science teacher. Today's video is for class 8th, and today I will be discussing you the chapter Agriculture, which is of your social studies and of your geography part. First of all, we will understand the agriculture, what the agriculture term means. The agriculture word is derived from Latin words ager or agri, meaning soil or field, and culture meaning cultivation. When we cultivate the soil to raise crops and to grow crops for our livestock rearing or to run our livelihood, that is agriculture. Agriculture is one of the most important activity in the world. About 75% of Indian total population is still depend on agriculture. हमारे भारत के 75% भारतीय जो हैं वो खेती और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं अपना लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने के लिए. Agriculture is the cultivation of plants and other life forms for food, fiber, biofuel, medicinal, and other products used to sustain and enhance human life. Agriculture was the key development in the rise of sedentary human civilization, whereby farming of domesticated species created food surpluses and that nurtured the development of civilization. As we all know that it is the primitive occupation occupied by the humans. प्राचीन काल में भी एग्रीकल्चर खेती जो व्यवसाय था. The word agriculture is the English adaptation of the Latin word agricultura. Here ager means field and cultura means cultivation. In the strict sense, agricultura means tillage of the soil, means rearing or cultivating the soil to grow crops. Agriculture was developed at least 10,000 years ago and it has undergone significant development since the time of the earliest civil cultivation. तो एग्रीकल्चर प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जा रहा यूज़ किया जा रहा ऑक्यूपेशन है. एग्रीकल्चर फॉल्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी एंड विच इंक्लूड्स द ग्रोइंग क्रॉप्स, fruits, vegetables and flowers, and as well as the rearing of livestock. As you can see in the screen, there are many agricultural activities like the growing of paddy. Paddy means dhan. Apple orchard. Orchard means where the fruits are grown or horticulture took place. Sunflower farm. Sunflower are harvested to get vegetable or cooking oil. Okay. Brinjal farming and rearing of livestock means pashu palan. Now we will understand the different kinds of cultivation, like horticulture means growing vegetable, flowers, fruits for commercial uses. Agriculture means खेती करना, growing the or cultivating the crops, cultivating the soil for growing the crops. Sericulture means rearing of silkworms to get silk. Cultivation of grapes is viticulture. And Pisces एक राशि होती है. Pisces जो वर्ड्स होता है वो फिशेस के लिए डिनोट किया जाता है. तो इसमें ब्रीडिंग और रियरिंग होगी किसकी? फिशेस की. Now there are two types of farmings. One is subsistence farming and another is commercial farming. Subsistence farming is of two types.
intensive subsistence and primitive subsistence which include shifting cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation वही है जो आदिवासी लोग एक भूमि को जला देते थे और फिर उसकी राख को मिट्टी में मिला करके वहाँ कल्टिवेटिंग करते थे, और जब उसकी उपजाऊता ख़त्म हो जाती तो फिर दूसरी जगह पर वो फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते थे और जला करके वही प्रोसेस शुरुआत करते थे. नोमैडिक हर्डिंग मीन्स जो बंजारे या चरवाहे होते हैं वो एक जगह रहते हैं और वहाँ की जो भी क्रॉप्स होती है या हर्ड जो उनके कैटल्स होते हैं वहाँ उनको चरा देते हैं और फिर दूसरी प्लेस में शिफ्ट कर जाते हैं. कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मीन्स क्रॉप कल्टीवेशन, मिक्स फार्मिंग जिसे इंटरक्रॉपिंग मेथड भी कह सकते हैं, और मिक्स्ड फार्मिंग आ जाता है. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. Shifting cultivation is followed with where heavy rainfall took place and which helps in the quick regeneration of that vegetation. How shifting cultivation is done? Shifting cultivation किस तरह से होता है? First of all, a plot of land is cleared by cutting down the trees and burning them. Then the ashes are mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. As you all know that cassava is a staple food of African continent. So the majority of the tribes or local peoples followed shifting cultivation there. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. और जैसे ही भूमि उपजाऊता मतलब फर्टिलिटी खो देगी या उसमें उपजाऊतापन कम हो जाएगा तो जो कल्टीवेटर है वो उस भूमि को छोड़ देंगे और इस प्रोसेस को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसी साइकिल है कि जब फार्मर्स हो सकता है कि ओरिजिनल प्लेस में कुछ सालों बाद लौट आएँ अगर वहाँ पर कोई भी ट्रीज़ या वाटर की मॉइस्चराइजेशन कंटेंट बढ़ जाने के कारण या ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाने के कारण उस प्लेस पर फिर से प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि एक मीन्स साइकिल चलती है. जैसे एक फॉरेस्ट है उसको कट किया गया और उसको बर्न कर दिया, फिर उसके जो एशेस थे मिट्टी में मिला दिए गए. किस में मिला दिए गए? फर्टाइल सॉइल में. फार्मिंग की गई और फार्मिंग करने से सॉइल इनफर्टाइल हो गई, बंजर हो गई और फिर उस लैंड को छोड़ दिया गया ताकि उसमें रीजनरेशन हो पाए या ग्रोथ हो पाए. ठीक है, जिससे बाद में उस लैंड को फिर से इस्तेमाल किया जा सके. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी एक्टिविटीज़ includes all those connected with extraction and production of natural resources. Means जब हम प्राकृतिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फूड प्रोडक्शन करेंगे या किसी भी तरह का हमारे सहायक जो हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डेली पर्पसेस में यूज़ होते हैं उसको प्रोड्यूस करना. जैसे एग्रीकल्चर में आपका पता है कि आपको कॉटन की खेती भी करते हैं, है ना, और इसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स की भी खेती की जाती है, फ्लावर्स की भी, कुकिंग ऑयल की भी, है ना. तो एग्रीकल्चर में ये पूरा ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स का प्रोसेस आ जाता है. फिशिंग एंड गैदरिंग. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज से जो मटेरियल आपने ग्रो कराया, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर से ग्रेन्स आपको मिली, आपने उस ग्रेन्स या सीरियल्स को का फ्लोर बना लिया और उस फ्लोर से आपको क्या मिल रहा है? ब्रेड का प्रोसेस. मतलब मीन्स आपने ब्रेड बनाई बेक करके, या आपने एग्रीकल्चर जो था
उससे आपने कॉटन ग्रो कराया और फिर वीविंग कर रहे हैं आप क्लोथ का। तो मीन्स सेकेंडरी प्रोसेस, मीन्स फर्स्ट प्रोसेस आपका प्राइमरी वो हुआ जब आपने रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया, और रॉ मटेरियल से कुछ मटेरियल्स बनाना जो हमारे डेली पर्पसेस में कुछ और एसेंशियल पर्पस में यूज़ होते हों, जैसे मेटल से हम ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं या अपने नेसेसरी यूटेंसिल्स बना सकते हैं, जो भी हमारे जनरल पर्पसेस के लिए वो मटेरियल यूज़ हो रहा होगा वो हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेड हो, केक्स हो या क्लॉथ हो, है ना, या दरी हो, कालीन हो, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच आर generated or which are supported to them by the primary and secondary activity, like transporting the goods, trade, banking, insurance and advertising. Like जैसे कि किसान खेती करता है, उसने क्रॉप्स जो थी वो या रॉ मटेरियल्स को बेच दिया, उससे गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो कंपनीज उसको बना रही हैं, चाहे वो प्राइमरी फैसिलिटी उससे फैक्ट्रीज या प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं या सेकेंडरी एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, उनको एक आर्थिक रूप से संपन्नता या उनके किसी न किसी तरह से काम आने में टर्शरी सेक्टर या टर्शरी एक्टिविटीज़ सहयोग या हेल्पफुल होती है। नाउ वी विल नो सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग है जब फार्मर अपनी फैमिली को रन करता है, ठीक है, फैमिली को चलाने के लिए, अपनी रेगुलर नीड्स या डेली नीड्स को चलाने के लिए वो हार्ड वर्क करता है, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग में आ जाता है। इसमें आपके लो लेवल टेक्नोलॉजीज़ या हाउस होल्ड लेबर जो है इंक्लूड होता है। मीन्स जैसे कि एक छोटा सा खेत था या किसी ऐसे बंधुआ मजदूरी आ जाती है जिसको इलीगल आजकल घोषित कर दिया है ना सरकार ने, क्योंकि इसमें शोषण होता था। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो हुई जैसे कि आपके पास अपना लैंड है या आप दूसरे के लैंड में वर्क कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग हो रही है या आप जो क्रॉप्स उगा रहे हैं उसका उससे आपका घर चल रहा है, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग अगर आ जाती है। इसमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस आ जाता है और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आ जाता है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस क्या होता है? दिस फार्मिंग इंक्लूड्स द फार्मर who cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. इसमें ज़्यादा श्रम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है और साधारण औजार लगते हैं जैसे हसिया, खुरपी और कुदाल, फावड़ा और प्लफ जिसे कह सकते हैं। और आप लोगों ने बुलक मीन्स आपने बुल्स का यूज़ तो देखा होगा गांव में कि बुल्स जो होते हैं, बैल जो होते हैं, वो हल चलाते हैं जिसमें कोई भी आधुनिक जो टूल्स है उसका यूज़ नहीं किया जाता, जैसे ट्रैक्टर है ना, सीव है। मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन एनुअली, मीन्स एक ही क्रॉप को ही उगाते हैं जिससे वही क्रॉप साल भर उनका भरण पोषण करने में सहायक हो। और क्लाइमेट अगर फेवरेबल होगा और सॉइल फर्टाइल होगी तो वो आपके हेल्पफुल होगी। राइस इज़ द मेन क्रॉप। तो ज़्यादातर हमारे भारत में गेहूँ, धान की खेती ही होती है और कुछ अन्य फसलें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपके सीसेम, तिल जिसे कहते हैं, और पीनट्स हैं, पल्सेस हैं, मेज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट फसलों में आ जाते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मानसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम है जब एक सिंगल क्रॉप, ठीक है, एक सिंगल क्रॉप को ही लार्ज स्केल में उगा दिया जाता है। जैसे चाहे टी कह सकते हैं, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैश्यू, काजू जिसे कहते हैं, रबर, बनाना या कॉटन उगाया जाता है। ये एक तरह से कैश क्रॉप्स में भी, जितने भी कैश क्रॉप्स होंगे वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ही आ जाते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल मीन्स मनी एंड इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। और जो प्रोड्यूस होता है वो फार्म में या फैक्ट्रीज़ के थ्रू होता है और
इसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रांसपोर्ट गुड्स नहीं हो पाएगा तो आप इसको रन नहीं कर सकते इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर को। जैसे कि आप जानते हैं कि केला जो है वो साउथ से मेजर सिटीज़ में मतलब आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, किया जाता है ताकि सभी को वो क्रॉप मिल पाए। स्पाइसेस आप जानते हैं कि ज़्यादातर अच्छे स्पाइसेस आपके कर्नाटका आंध्र प्रदेश में ही उगते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है दूसरे लोकल स्टेट्स में, ठीक। और मेजर प्लांटेशंस ट्रॉपिकल रीजन्स में के वर्ल्ड में पाए जाते हैं, जैसे कि मलेशिया में रबर प्लांटेशन बहुत कॉमन है, ब्राज़ील में कॉफ़ी, इंडिया में टी प्लांटेशन एंड श्रीलंका में भी टी ही प्लांटेशन किया जाता है। जैसे आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से रबर प्लांटेशन या शुगर केन प्लांटेशन, टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा है, ठीक। मीन्स जब लार्ज स्केल में एक ही क्रॉप का ग्रोथ कराया जाए, उसको प्लांट किया जाए, जिससे कि वो क्रॉप जो है ज़्यादा मात्रा में उग सके और उसको सेल ऑफ किया जा सके, तो ये क्या है, प्लांटेशन। नाउ वी विल नो अबाउट what is mixed farming. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. Means mixed farming में क्या होता है कि ज़मीन में उगाई जाने वाली फसलों के साथ साथ जो उसका रेजिडुअल मास होता है उसको फॉडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और जो कैटल है उसको रियर किया जाता है, यानी पाला जाता है ना। जैसे कि आपने फसल उगाई और उसका जो फसल काटने के बाद जो उसका बचा हुआ कण बचा, या आपका जो चारा आपने बना लिया उस पौधे का, और फिर उसे आपने पशुओं को चारा के रूप में डाल दिया। इससे आप दो तरह की फार्मिंग को, जैसे कि डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर को एक साथ रन कर पा रहे हैं। Mixed farming is generally practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand and South Africa. Mixed farming is the combination of two independent agricultural enterprises on the same farm. A typical case of mixed farming is the combination of crop enterprise with dairy farming, that is crop cultivation, with livestock farming or rearing. Mixed farming may be treated as a special case of diversified farming. This particular combination of enterprises support each other and add to farmers' profitability. The cropping system comprises of one or more crops. Most farmers follow cropping patterns that involves sequential cropping, mixed cropping, relay cropping. Means मिक्स फार्मिंग में क्या है कि क्रॉप जो पैटर्न्स है, मीन्स क्रॉपिंग सिस्टम यानी फसल की रोपाई को या उगाने की जो प्रक्रिया है वो कई रूपों में या क्रॉपिंग मेथड्स में हो सकती। मिक्स क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स द साइमल्टेनियस ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इंटरमिंगल्ड ऑन द सेम लैंड। मीन्स क्रॉप रोटेशन मेथड भी फॉलो होता है मिक्स क्रॉपिंग में। What are the advantages of mixed cropping? There is a greater stability of yield over different seasons. Means विभिन्न मतलब जैसे कि विभिन्न ऋतुओं में जो फसलें हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उगा करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। Better use of growth resources, better control of weeds, pests and diseases. One crop may provide physical support to another one and can resist the entry of the harmful insects or pests. One crop may help or provide shelter to other crop. Erosion control through providing continuous leaf covering over the ground surface and benefit to the small farmers of limited means. Now what is commercial farming? Commercial farming includes the grain farming, mixed farming and plantation agriculture, जिसके बारे में हम लोग आगे ही बात कर चुके हैं। In this farming, crops are grown and animals are reared for sale in the market.
that is for the commercial purposes, for the beneficial purposes, or for the ordinary purposes that are needed regularly. While in subsistence farming, crops are grown mainly for the farmer's family needs. The area cultivated and the amount of capital invested is large. कमर्शियल फार्मिंग में जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो धन लगता है या इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और मेनली जो वर्क मेजॉरिटी जो वर्क है वो मशीन के थ्रू ही होता है. इसे चलाने के लिए बहुत सी फैक्ट्रीज़ भी इस प्रोसेस को रन कर रही हैं जिससे कि उनको क्या मिलता है, बहुत प्रॉफिटेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस और प्रोडक्शन मिल पाता है. There are majority of crops grown annually to meet the needs of the growing population, which are wheat, rice, maize and millets. Main fiber crops are jute and cotton. Fiber means रेशेदार, जिनसे धागा या कपड़ा बनता है. तो जूट, पटसन और कॉटन मीन्स कपास. इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स मीन्स जिनसे हर्बल ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, जैसे टी, कॉफ़ी के बारे में आप सभी को पता ही है. मैनी क्रॉप सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. नाउ व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग इज अ क्लास ऑफ एग्रीकल्चर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विच इज़ प्रोसेस्ड ईदर ऑन द फार्म और एट अ डेयरी प्लांट. जैसे कि आप जानते हैं अमूल डेयरी फार्मिंग का एक बड़ा सेक्टर है या इंडस्ट्री है जो मिल्क प्रोडक्शन को फोकस करता है और इसके साथ ही साथ अमूल ने कई वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको भी इन्हेंस किया है, बढ़ाया है. ईदर ऑफ विच में बी कॉल्ड अ डेयरी और फॉर इवेंचुअल सेल ऑफ अ डेयरी प्रोडक्ट. Although any mammal can produce milk, commercial dairy farms are typically one species enterprises. अगर देखा जाए तो मेनली वन स्पीशीज़ जैसे काव या बफेलो या गोट की ही इंडस्ट्री या फार्मिंग चल रही होगी. इन हाईली डेवलप्ड कंट्रीज डेयरी फार्म्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी काउज, जैसे जर्सी है ना. Other species used in commercial dairy farming include the goats, sheep and camels. In Italy, donkey dairies are growing in popularity to produce an alternative milk source for human infants. So, as per the growing needs, dairy farming is also increasing because we also have seen that the majority of people are introducing cheese as a main ingredient in their food items. So cheese is prepared from milk, so the milk production is cost to higher scale. So this was the chapter explanation of agriculture. I hope you must have understood about this chapter. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.